Good afternoon, dear students. I am Ms. Megha Parashar from SIRT SSP. Now we start defects of tablet. Tablet defects can come from any of the unit operation of the stream and from the tablet press. The raw material may be of poor quality or do not meet specification, causing excessive fines that lead to a host of defects. Also, there are several defects that affect the tablet making process. Capping, lamination, hardness, and sticking, picking are the three most common encountered. Milling process causes too many fines that results to capping, hardness, lamination, and black spots. These are the common tablet defects. An industrial pharmacist usually encounters number of problems during manufacturing. Majority of visual defects are due to inadequate fines or inadequate moisture in the granules ready for compression or due to a faulty machine setting. Functional defects are due to a faulty formulation. These are the basic problems after defects of tablets: weight variation, mechanical strength related content, uniformity, release profile altered, visual defects, hardness, friability. These are the common basic problems. The imperfection known as a visual defects are either related to an imperfection in any one or more of the following factors: formulation designs, tableting process, machines. These defects are occur via formulation designing, tableting process, and machine. Visual defects are of three types: process related, formulation related, and machine related. In process related, capping, lamination, cracking, chipping are occurred via process related defects, and formulation related defects: sticking, picking, binding, and machine related defects are double impression. Capping in capping, upper and lower segment of a tablet separates horizontally, either partially or completely from the main body, and comes off as a cap during ejection from the tablet press or during subsequent handling. जब हम remove करते हैं, whenever remove a tablet from the dies, तो जो लोअर पंच होता है उसका जो प्रेशर होता है उसके थ्रू हम जब टैबलेट का इजेक्शन करते हैं तो उस दौरान जो है वो कैपिंग के चांसेस होते हैं। इसका रीजन क्या होता है? ड्यू टू द एयर इंट्रैपमेंट इन द कॉम्पैक्ट ड्यूरिंग कंप्रेशन। जब हम कंप्रेशन करते हैं तो कॉम्पैक्शन के दौरान क्या होता है कि एयर का इंट्रैपमेंट हो जाता है या सब्सिक्वेंट एक्सपेंशन ऑफ अ टैबलेट और ऑन इजेक्शन ऑफ अ टैबलेट्स फ्रॉम अ डाई। So these are the reason and main causes and remedies of the capping of tablets. तो large amount of fines in the granulation, जब इसमें large amount of fines जो होते हैं वो present रहते हैं जिसकी वजह से टैबलेट जो है उसमें कैपिंग का डिफेक्ट आता है। इसको हम रिमूव कर सकते हैं। जो 100 नंबर की सी से और 200 की मैच स्क्रीन से पास आउट हो जाएंगे उनको हम रिमूव कर सकते हैं ऐसे पार्टिकल्स को, जिसकी वजह से हम कैपिंग जो है उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। टू ड्राई और वेरी लो मॉइस्चर कंटेंट, जब कोई भी जब कंटेंट हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर बहुत ही लो मॉइस्चर है या फिर बहुत ज्यादा ड्राई कंटेंट है तो हम के चांसेस रहते हैं कैपिंग के चांसेस। तो हम उसमें क्या करते हैं, मॉइस्चर द ग्रेन्यूल्स सुटेबली एट हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, एग्जांपल जैसे कि सॉर्बिटॉल, मिथाइल सेलुलोज और PEG 400 वगैरह हम इसमें ऐड कर देंगे तो ये हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। नॉट थ्रूली ड्राइड ग्रेन्यूल्स, तो ड्राई द ग्रेन्यूल्स प्रॉपरली, अगर वो प्रॉपर ड्राई नहीं है तो चांसेस होते हैं कैपिंग के। ये सारे सेम जो प्रोसेस होते हैं वो कैपिंग के हैं। और insufficient amount of a binder or improper binder, increasing the amount of binder or adding dry binders such as pre-gelatinized starch, gum, acacia powder, sorbitol, PVP, polyvinyl pyrrolidone, hydrophilic silica or a powdered sugar.
insufficient or improper lubricants, increase the amount of lubricants or change the type of lubricant. अगर हम lubrication के लिए amount बढ़ा देंगे lubricant का या उसका type को change कर देंगे तो हम prevent कर सकते हैं capping से. ग्रैनुलर मास टू कोल्ड टू कंप्रेस फॉर्म. जब ग्रैनुलर मास जो है वो बहुत ही ठंडा है, बहुत ही कोल्ड है इन फॉर्म में, तो दैट इज द उसमें हम क्या कर सकते हैं, उसको रूम टेम्परेचर पे आके कंप्रेस कर सकते हैं, तो हम बचा सकते हैं. इसके और कॉसेस होते हैं पुअरली फिनिश डाई. अगर वो प्रॉपर्ली फिनिश नहीं है तो पॉलिश डाई प्रॉपर्ली, जो इंटरनल सरफेस पे पॉलिश है डाइस के, वो हम प्रॉपर्ली होना चाहिए. इन्वेस्टिगेट अदर स्टील्स और अदर मटेरियल जो भी उसके अंदर यूज हो रहा है वो उसको प्रॉपर्ली हम इन्वेस्टिगेट करें. डीप कॉनकेव पंचेस, जो डीप शेप के होते हैं कॉनकेव पंचेस, और जो बेबलेट एजेस फेस ऑफ पंचेस होते हैं, तो वैसे पंचेस का हम यूज ना करें. यूज करें मेनली यूज फ्लैट पंचेस का. अगर हम यूज करेंगे तो कैपिंग से हम प्रिवेंट कर सकते हैं. लोअर पंचेस रिमेन बिलो द फेस ऑफ डाई ड्यूरिंग इजेक्शन. में प्रॉपर सेटिंग, अगर वो जो लोअर पंच है उसकी प्रॉपर सेटिंग नहीं है तो उसकी वजह से ये चांसेस होते हैं. इनकरेक्ट एडजस्टमेंट ऑफ स्वीप ऑफ ब्लेड. मतलब स्वीप ऑफ ब्लेड कौन सी होती है, जबकि हमने डाई के अंदर जो हमारा कंटेंट है उसको फिल किया, उसके बाद जो एक्सेसिव मटेरियल उसको स्वीप करने के लिए स्वीप ब्लेड होती है, अगर वो प्रॉपरली एडजस्ट नहीं है उसके अंदर तो ये प्रॉब्लम होती है. तो इसको ओवरकम करने के लिए हम जो टूलिंग है उसका एडजस्टमेंट प्रॉपर तरीके से करना चाहिए. हाई ट्यूरेट स्पीड, अगर ट्यूरेट की स्पीड जो है बहुत ज्यादा है तो उसको रिड्यूस करेंगे. तो ये सारे कॉसेस होते हैं और रेमेडीज होती है कैपिंग से बचाने के लिए. लेमिनेशन में भी सेम रेमेडीज और सेम कॉसेस होते हैं, सेम कॉसेस और रेमेडीज होती हैं. हम प्रिवेंट करने के लिए लेमिनेशन से हमारा जो टैबलेट है उसको सेपरेशन ऑफ अ टैबलेट इनटू 2 और मोर डिस्टिंक्ट हॉरिजॉन्टल लेयर, जिसमें कि ये 2 या 2 से ज्यादा हॉरिजॉन्टल लेयर्स में क्या होता है कि जो टैबलेट है वो सेपरेट हो जाती है. इसकी एयर इंट्रैपमेंट ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड सब्सिक्वेंट रीजंस ऑन इजेक्शन. जब इजेक्शन के दौरान प्रॉपर नहीं है तो द कंडीशन इज एक्सग्रेटेड बाय हायर स्पीड ऑफ ट्यूरेट. अगर स्पीड ज्यादा है ट्यूरेट की तो भी ये लेमिनेशन के चांसेस हैं. इसमें भी लार्ज अमाउंट अगर फाइन अगर आप यूज कर रहे हो तो ऐसा है, तो एक स्पेसिफिक परसेंट होता है, उस परसेंट में हमें फाइन्स को यूज करना चाहिए. और उस 100 और 200 की सीट से जो भी हमारा मटेरियल पास आउट हो जा रहा है उसको रिमूव कर देना चाहिए, उसमें ऐड नहीं करना चाहिए. टू ड्राई और वेरी लो मॉइस्चर कंटेन लीडिंग टू लॉस ऑफ अ प्रॉपर बाइंडिंग एक्शन. मॉइस्चर ऑफ ग्रेन्यूल इसमें सुटेबल जो है सॉर्बिटॉल, मिथाइल सेलुलोज, इसको हम ऐड कर सकते हैं. इसको ग्रेन्यूल्स जो है उनको हमें प्रॉपर्ली ड्राई करना चाहिए. इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ बाइंडर और इम्प्रॉपर बाइंडर्स. हमें जो भी बाइंडर्स हम यूज कर रहे हैं पीवीपी वगैरह, सॉर्बिटॉल वगैरह, उनका प्रॉपर कॉम्बिनेशन और यूज करना चाहिए. ठीक है. इसके बाद होता है इनसफिशिएंट और इम्प्रॉपर लुब्रिकेंट. लुब्रिकेंट का भी हमें प्रॉपर ध्यान रखना चाहिए, या फिर अगर सुटेबल है तो हम चेंज भी कर सकते हैं उसको. तो रैपिड रिलैक्सेशन ऑफ द पेरिफेरल रीजंस ऑफ अ टैबलेट और इजेक्शन फ्रॉम अ डाइस. इसके बाद है यूज टैपर डाइस यूज करनी चाहिए हमें से. जैसे अपर पार्ट ऑफ द डाइस बोर हैज एन आउटवर्ड टैपर ऑफ 3 डिग्री टू 5 डिग्री तक हमें से रखना चाहिए. रैपिड डिकम्प्रेशन होना चाहिए, जैसे कि यूज प्री कंप्रेशन स्टेप में रिड्यूस ट्यूरेट स्पीड्स एंड रिड्यूस द फाइनल कंप्रेशन प्रेशर. तो ये सारे कॉसेस एंड रेमेडीज हैं ऑफ कैपिंग की. इसके बाद अगर हम चिपिंग की बात करें तो ब्रेकिंग ऑफ अ टैबलेट एजेस व्हाइल द टैबलेट लीव्स द प्रेस और ड्यूरिंग सब्सिक्वेंट हैंडलिंग एंड कोटिंग ऑपरेशन. ठीक है. जब एजेस से जो टैबलेट है वो ब्रेक हो रही है व्हाइल द टैबलेट जब प्रेस से निकल रही है तो चिपिंग के चांसेस हैं. रीजन क्या है? इनकरेक्ट मशीन सेटिंग, स्पेशली मिस सेट इजेक्शन टेक ऑफ. जब जहाँ इजेक्शन हो रहा है टैबलेट का टेक ऑफ हो रहा है वहां पर प्रॉपरली सेट नहीं है मशीन हमारी, तो चिपिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं. इसकी कॉसेस जो है वो स्टिकिंग ऑन पंचेस फेसेस, टू ड्राई ग्रेन्यूल्स, टू मच बाइंडिंग कॉसेस चिपिंग एट बॉटम. तो अगर टू स्टिकिंग हो रही है ऑन पंचेस फेस पे तो ड्राई ग्रेन्यूल प्रॉपरली और इंक्रीज लुब्रिकेशन. जैसे भी आपने देखा होगा कि ऑब्वियसली बात है कि हमारे जो ग्रेन्यूल्स हैं वो अगर ज्यादा मॉइस्ट हैं तो स्टिकिंग की प्रॉब्लम आएगी पंचेस की फेसेस पर.
तो उसको हम प्रॉपरली ड्राई करें या इंक्रीज करें लुब्रिकेशन को टू ड्राई ग्रेन्यूल्स। अगर बहुत ज्यादा ड्राई ग्रेन्यूल्स है तो भी मॉइस्चर द ग्रेन्यूल्स टू प्लास्टिसाइज, फिर हम उसको मॉइस्ट करेंगे, देन ऐड हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस करेंगे, तो फिर हम उसको जाके एक फिनिश गुड प्रोडक्ट हमें मिल सकता है। टू मच बाइंडिंग कॉसेस चिपिंग एट बॉटम, जो चिपिंग के बॉटम पे चांसेस हैं वो कैसे, ऑप्टिमाइज बाइंडिंग और यूज ड्राई बाइंडर्स। ड्राई बाइंडर्स का हम यूज करेंगे और ऑप्टिमाइज जितनी जरूरत है उतनी ही बाइंडिंग करेंगे, तो हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो है कॉसेस ग्रूव ऑफ डाई बॉन्ड टू कंप्रेशन पॉइंट, तो हम इसमें पॉलिश टू ओपन एंड रिवर्स और रिप्लेस द डाई, प्रॉपर फिनिशिंग होनी चाहिए, प्रॉपर पॉलिशिंग होनी चाहिए। सेंटर ऑफ द डाई बाइंडर देन एंड्स, मतलब बैरल डाई जो होता है, पॉलिश द डाई टू मेक इट सिलेंड्रिकल cylindrical, and edges of punches face turn inside and inwards. To polish the punch edges and concavity to compress powder blend, reduce concavity of punch faces, use straight punches. तो हमें यूज कैसे करना चाहिए, फ्लैट पंचेस का यूज करना चाहिए, जिससे हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। The next one is cracking. Cracking, small fine crack observed on the upper and lower central surface of tablets or very rarely on the side wall are referred to as cracks. Reason क्या होता है cracking की? It is observed as a resulting of rapid expansion of tablets, especially when deep concave पंचेस आर यूज। जब हम डीप कॉन्केव पंचेस यूज करते हैं तो क्रैकिंग के चांसेस होते हैं, तो इसके लिए लार्ज साइज ऑफ ग्रेन्यूल्स जो है उसकी वजह से भी क्रैकिंग के चांसेस होते हैं। तो जितना हमें रिक्वायर्ड है उस साइज के ग्रेन्यूल्स हमें प्रेफर करने चाहिए। रिड्यूस ग्रेन्युलर साइज और एड फाइन्स, हम इसमें अगर कुछ फाइन्स मिला देंगे तो हम एक फिनिश्ड गुड मिल सकता है हमें। टू ड्राई ग्रेन्यूल्स जो हैं, बहुत ज्यादा अगर ड्राई ग्रेन्यूल्स हैं तो उसको हम वॉश करके हम यूज कर सकते हैं, प्रॉपर अमाउंट में हम बाइंडर्स का यूज करके हम उसको यूज कर सकते हैं। टैबलेट एक्सपेंड में इम्प्रूव ग्रेन्युलेशन एंड एड ड्राई बाइंडर्स यूज करके और ग्रेन्युलेशन को इम्प्रूव करके हम बचा सकते हैं। एंड ग्रेन्युलेशन टू कूल्ड, अगर बहुत ज्यादा कूल्ड है तो कंप्रेस उसे हम किस टेम्परेचर पे करना चाहिए, हम उसे रूम टेम्परेचर पे कंप्रेस करेंगे तो हमें प्रॉपर फिनिश प्रोडक्ट मिलेगा। के बाद अगर और कॉसेस की बात करें तो क्रैकिंग रिलेटेड, मशीन से रिलेटेड जो भी चांसेस होते हैं वो क्या क्या होते हैं। टैबलेट एक्सपेंड और रिजेक्शन टू एयर एंट्रैपमेंट, जब एयर एंट्रैपमेंट होता है तो हमें टैपर्ड डाई का यूज करना चाहिए। डीप कॉन्केविटी कॉजेस क्रैकिंग व्हाइल रिमूविंग टैबलेट, जब हम उससे रिमूव करते हैं टैबलेट तो हमारी क्रैकिंग के चांसेस होते हैं। ये सारे जो मशीन के कॉसेस हैं और इसकी रेमेडीज यूज स्पेशली टेक ऑफ, अच्छे से टेक ऑफ करना चाहिए, उसमें स्पेशलाइजेशन का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है। स्टिकिंग में क्या होता है, दैट मटेरियल जो होता है एडहेरिंग टू द डाई वॉल से ऐसे एडहेर हो जाता है, एडहेर हो जाती है उसकी। तो फिल्मिंग इज अ स्लो फॉर्म ऑफ स्टिकिंग एंड इज लार्जली ड्यू टू एक्सेस मॉइस्चर इन द ग्रेन्युलेशन, मतलब जो हमने ग्रेन्यूल प्रिपेयर किए हैं उसके अंदर एक्सेसिव ऑफ मॉइस्चर उसने कंटेंट किया हुआ है, तो ये जो है स्टिकिंग के चांसेस हैं डाई वॉल के ऊपर। इसके रीजन क्या होते हैं, इम्प्रॉपर ड्राई और इम्प्रॉपरली लुब्रिकेटेड ग्रेन्यूल्स, मतलब अगर ये प्रॉपरली ड्राई नहीं है, इसका प्रॉपर लुब्रिकेशन नहीं हुआ है तो स्टिकिंग के चांसेस हैं ऑन डाई वॉल पर। तो इसके कॉसेस क्या होते हैं, फॉर्मुलेशन से रिलेटेड कॉसेस होते हैं। ग्रेन्यूल्स नॉट ड्राई प्रॉपर्ली, अगर हमने इसको प्रॉपर ड्राई नहीं किया है तो हम प्रॉपर उसको ड्राई करें। मेक्स मॉइस्चर एनालिसिस टू डिटरमाइन लिमिट्स, कितनी लिमिट तक हम उसे ड्राई करना चाहिए। टू लिटिल और इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, अगर उसका इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन है और बहुत कम है तो जो है वो एडिशन के चांसेस हैं। इंक्रीज और चेंज लुब्रिकेंट, जो भी लुब्रिकेंट हम यूज कर रहे हैं उसको या तो हम इंक्रीज करें या फिर उसे चेंज करें। टू मच बाइंडर, जब हम बहुत ज्यादा बाइंडर यूज कर रहे हैं तो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ बाइंडर और यूज अ डिफरेंट टाइप ऑफ बाइंडर, वो अगर बाइंडर उसके साथ सुटेबल नहीं है तो हम कोई डिफरेंट टाइप का बाइंडर भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रोस्कोपिक ग्रैन्युलर मटेरियल, तो मॉडिफाइंग ग्रेन्युलेशन एंड कंप्रेस अंडर कंट्रोल ह्यूमिडिटी, कंट्रोल ह्यूमिडिटी के अंदर हमें उसे कंटेन करके रखना है। ऑयली और वे मटेरियल, मतलब मॉडिफाइंग मिक्सिंग प्रोसेस एड अ एब्जॉर्बेंट, हम उसमें एब्जॉर्बेंट का ऐड करेंगे और जो हमारी प्रोसीजर है उसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे, तो हम जो है
वो इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। मशीन के डिफेक्ट्स क्या होते हैं स्टिकिंग के लिए? कॉन्केविटी टू डीप फॉर ग्रेनुलेशन, तो हम रिड्यूस करेंगे ऑप्टिमम तक कॉन्केविटी को। एंड टू लिटिल प्रेशर, अगर बहुत लिटिल प्रेशर है तो इंक्रीज प्रेशर को इंक्रीज करेंगे। कंप्रेसिंग टू फास्ट, अगर हम कंप्रेसिंग बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं तो उसकी स्पीड को हमें स्लो करना पड़ेगा, तब जाके हम प्रिवेंट कर सकेंगे स्टिकिंग ऑफ टैबलेट्स इनटू द डाई वॉल। So picking. Next one is picking. Small amount of material from a tablet is sticking to and being removed from a tablet surface by a punch piece. Punch piece के ऊपर कुछ little amount जो होता है वो pick हो जाता है। तो the problems is more prevalent on the upper punch pieces than on the lower ones, है ना? तो ये upper पे ज़्यादा problem देखी गई है in comparison to lower punch पे picking की problem जो tablet की आती है। तो पिकिंग के रीजन होते हैं इज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न व्हेन द पंच टिप हैव एंग्रेविंग और एम्बॉसिंग लेटर में है अगर वो, तो पिकिंग की प्रॉब्लम ज्यादा है। जैसे कि जो स्पेसिफिक अल्फाबेट है वो बहुत अगर डीप है तो प्रॉब्लम है। ग्रेनुलर मटेरियल जो है इस प्रॉपर इम्प्रॉपर ड्राइड है, मतलब प्रॉपरली ड्राइड नहीं है जो भी ग्रेनुल्स हम यूज कर रहे हैं उसके अंदर। तो उसकी कॉसेस क्या होते हैं? फॉर्मुलेशन की प्रोसेस होते हैं। एक्सेसिव मॉइस्चर इन ग्रेन्यूल्स, अगर ज्यादा मॉइस्चर कंटेन किए हुए हमारे ग्रेन्यूल्स उसको प्रॉपर्ली ड्राई करेंगे डिटरमाइन ऑप्टिमम लिमिट तक। टू लिटिल और इम्प्रॉपर लुब्रिकेशन, लुब्रिकेशन अगर प्रॉपर नहीं है और बहुत कम लुब्रिकेशन है तो भी हो सकता है, तो इंक्रीज लुब्रिकेशन करेंगे। यूज कोलोइडल सिलिका एज अ पॉलिशिंग एजेंट सो दैट मटेरियल डज नॉट क्लिकिंग पंचेस स्पेसेस। पॉलिशिंग एजेंट जो है वो अगर हम इसके यूज करेंगे सिलिका वगैरह तो इससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं। लो मेल्टिंग पॉइंट सब्सटेंसेस में सॉफ्टन फ्रॉम द हीट ऑफ द कंप्रेशन एंड लीड टू पिकिंग। एट हाई मेल्टिंग पॉइंट मटेरियल यूज हाई मेल्टिंग पॉइंट के लिए। लो मेल्टिंग पॉइंट मेडिकामेंट इन हाई कंसेंट्रेशन, जो मेडिकामेंट है वो उसका अगर मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है तो इन हाई कंसेंट्रेशन में तो हम उसको क्या करेंगे? रेफ्रिजरेट करेंगे ग्रेन्यूल्स को एंड द एंटायर टैबलेट प्रेस, फिर हम उसको टैबलेट को प्रेस करेंगे। टू वार्म ग्रेन्यूल्स व्हेन कंप्रेसिंग, जब हम टैबलेट कंप्रेसिंग कर रहे हैं उस दौरान अगर हमारे ग्रेन्यूल्स वार्म हैं तो भी चांसेस होते हैं पिकिंग के। कंप्रेशन एट रूम टेम्परेचर पे अगर हम उसका कंप्रेशन करेंगे और जितना हमें कूल चाहिए है ग्रेन्यूल्स उतना सफिशिएंट कूल होना चाहिए बिफोर कंप्रेशन, तभी जाके हम उससे प्रिवेंट कर सकते हैं पिकिंग से। टू मच अमाउंट ऑफ बाइंडर्स, अगर बाइंडर का अमाउंट हमने ज्यादा यूज किया है तो भी ये प्रॉब्लम्स आती हैं। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ बाइंडर्स, चेंज द टाइप और यूज ड्राई बाइंडर्स, हम उसका बाइंडर का टाइप चेंज कर सकते हैं और ड्राई बाइंडर्स का यूज कर सकते हैं। अगर हम मशीन रिलेटेड कॉसेस की बात करें तो रफ और स्क्रैच पंचेस स्पेसेस होते हैं, इसके लिए हम उसको प्रॉपर्ली पॉलिश करें एंड हाई लस्टर के लिए टू फेसेस टू हाई लस्टर। फिर एम्बॉसिंग और एंग्रेविंग लेटर्स ऑन पंच स्पेसेस सच एज ए बी ए ओ आर पी क्यू जी, ये सारे जो लेटर्स होते हैं ये प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो डिजाइन लेटर एज लार्ज एज पॉसिबल। Plate the punch face with a chromium to produce a smooth and non-adherent face, मतलब जो प्लेट और जो पंच है फेसेस वो हो क्रोमियम की टू प्रोड्यूस अ स्मूथ एंड नॉन एडहेरेंट फेस, क्रोमियम की बनी होगी तो एडिशन के चांसेस कम होंगे। विगल्स और डिवाइडिंग लाइंस टू डीप, अगर डिवाइडिंग लाइंस या विगल्स जो है वो बहुत ज्यादा डीप है तो ये प्रॉब्लम होता है, तो हम उसको रिड्यूस कर सकते हैं उसकी डेप्थ को और उसकी शार्पनेस को। प्रेशर अप्लाइड इज नॉट इनफ टू सॉफ्ट टैबलेट्स, अगर जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं अगर वो इनफ नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए? प्रेशर को इंक्रीज करना चाहिए टू ऑप्टिमाइज तक, तो हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं पिकिंग से। इसके बाद अगर हम बाइंडिंग की बात करें तो स्टिकिंग ऑफ अ टैबलेट टू द डाई एंड डज नॉट इजेक्ट प्रॉपर्ली आउट ऑफ डाई, टैबलेट adhere size or tear in the die, a film is formed in the die and ejection of tablet is hindered. With excessive binding the tablet sides are cracked and it may crumble apart. Reason क्या होता है? Usually due to excessive amount of moisture and granules, lack of lubrications and or use of our
dyes. इसकी causes क्या क्या होते हैं? To moisten granules and extrude around lower punch, मतलब dry the granules properly, उसको properly हमें granules को dry करना है. Insufficient or improper lubricants, increase the amount of lubricants or use a more effective lubricants. Too coarse granules अगर हम use कर रहे हैं तो उसका size हम reduce करेंगे, and more fines and increase the quantity of lubricant. Too hard granules for the lubricants to be effective. Modifying granulation को modify करेंगे हम, reduce granular size को हम reduce करेंगे. Granular material very abrasive and cutting into dyes, बहुत abrasive है तो problem आती है. तो if coarse granules reduce its size, use wear resistance dye. Granular material to warm, sticking to the dye. अगर बहुत गर्म है तो वो sticking हो जाएगा dye से, तो reduce करेंगे temperature को, increase clearance of it. It is excluding. तो ये हमें prevent करेगा binding से. इसके बाद अगर हम मशीन से रिलेटेड देखें तो अगर poorly finished dyes हैं, polish the dyes properly, rough dye जो हैं और abrasion corrosion की वजह से, तो investigate other steels or the material or modifying granulation भी करके हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं. अंडरसाइज डाई जो है, टू लिटिल क्लियरेंस जिनका है, तो रिमूव टू प्रॉपर साइज, रिवर्क टू प्रॉपर साइज पे हमें वर्क करना है. इंक्रीज करना है क्लियरेंस को. टू मच प्रेशर इन द टैबलेट प्रेस, अगर बहुत ज्यादा प्रेशर है तो भी बाइंडिंग की प्रॉब्लम आ सकती है, तो रिड्यूस प्रेशर को रिड्यूस करना है और मॉडिफाइंग ग्रेनुलेशन को मॉडिफाइंग करना है, तो हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं. ये मशीनरी रिलेटेड है. मॉडलिंग, नेक्स्ट वन इज मॉडलिंग. मॉडलिंग इज आल्सो अ डिफेक्ट ऑफ tablet. Unequal distribution of color or a tablet with light or dark spots. जब उसका improper distribution होता है तो कहीं कहीं light spots, कहीं dark spots रह जाते हैं कलर के. Suppose that हम red, blue, कोई सा भी कलर जो यूज कर रहे हैं, white, तो उसके spots हो जाते हैं, जिसे हम कहते हैं mottling. तो इसका रीजन होता है कलर ड्रग टू कलर डिफर फ्रॉम द कलर ऑफ एक्सिपिएंट्स यूज्ड फॉर अ ग्रेनुलेशन ऑफ अ टैबलेट. मतलब जब हम जो भी कलर कर रहे हैं वो जो हमारे पास जिस कलर के इंग्रेडिएंट है उससे एकदम ही डिफरेंट कलर अगर हम यूज कर रहे हैं तो ऐसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं. और इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं मॉडलिंग के? अ कलर ड्रग यूज्ड अलोंग विद कलरलेस और वाइट कलर्ड एक्सिपिएंट्स. अगर हम जो कलर्ड ड्रग है जब हम यूज करते हैं कलरलेस और वाइट कलर एक्सिपिएंट के साथ में, तो अगर हमने उसको प्रॉपरली जो हमारी प्रोडक्ट का कलर होना चाहिए वो रिलेटेड होना चाहिए, कोरिलेटेड होना चाहिए. अगर एकदम ही डिफरेंट फॉर्म में है, कलर फॉर्म में है, तो फिर डिफेक्ट के चांसेस, मॉडलिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं. तो इसलिए यूज एप्रोप्रिएट कलरेंट्स यूज करना चाहिए जो उससे रिलेटेड है. A dye migrates to the surface of granulations while drying. तो changes the solvent system. हम solvent system को अगर change करें तो हम prevent कर सकते हैं. Change the binders को अगर हम use करें. Reduce drying temperature. अगर temperature बहुत high है तो आपने देखा होगा कि कभी भी temperature high पे हमारी जो tablet है या किसी भी चीज को हम धूप में रखते हैं तो उसकी जो color है उसमें effect आता है, कहीं dark है कहीं lighter spots type से मिलते हैं हमें. यूज अ स्मॉलर पार्टिकल साइज. अगर हम स्मॉल पार्टिकल साइज यूज करेंगे तो ये डिफेक्ट के चांसेस कम होते हैं. इम्प्रॉपर मिक्स डाइस. अगर हम जो डाइस यूज कर रहे हैं वो प्रॉपर्ली मिक्स नहीं है, स्पेशली ड्यूरिंग डायरेक्ट कंप्रेशन टैबलेट में. जब हम डायरेक्ट कंप्रेशन टैबलेट में कलरिंग एजेंट का यूज करते हैं तो डायरेक्ट हम सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हैं, डायरेक्टली कंप्रेस करके बनाते हैं, तो फिर उसमें ना इम्प्रॉपर मिक्सिंग होती है जिसकी वजह से ये चांसेस होते हैं. तो उसको हमें प्रॉपर्ली मिक्स करना चाहिए, रिड्यूस साइज करना चाहिए पार्टिकल्स का. इट इज ऑफ अ लार्ज साइज टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन से बचाने के लिए. इम्प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ अ कलर्ड बाइंडर सॉल्यूशन. जो इम्प्रॉपर मिक्सिंग है, जो बाइंडर सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं उसका, to incorporate dry color additives during powder blending step, then add fine powders adhesives such as acacia and tragacanth and mix well and finally add granulating liquids. So these are the remedies. And next one is a double impression. In double impression involve only those punches which have a monogram or other engraving on them. If the upper punch is uncontrolled, it can rotate during the short travel to the final compression stage and create a double impression. जब हमारा जो
अपर पंच है वो अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है और वो थोड़े से जब बीच में लिटिल टाइम पे भी मूव कर जा रहा है, तो जो चांसेस हैं डबल इम्प्रेशन के वो हमारे फिनिश प्रोडक्ट में बढ़ सकते हैं। तो इसके रीजन हो सकते हैं एट द मोमेंट ऑफ कंप्रेशन द टैबलेट रिसीव द इम्प्रिंट ऑफ द पंच एंड द लोअर पंच, हम इम्प्रिंट ऑफ द पंच मतलब जो भी प्रिंट है उसका इम्प्रिंट होगा, प्रॉपरली प्रिंट टैबलेट हमें नहीं मिलेगी। The lower punch freely drop and travels uncontrolled for a short distance before riding up the ejection cam to push the tablet out of the die। जब डाई से निकल रहा है तो जो लोअर पंच है उसका मूवमेंट इम्प्रॉपर है, तो भी हम इम्प्रॉपर की वजह से क्या हो सकता है कि जो जैसा प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए वैसा फिनिश प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। नाउ ड्यूरिंग दिस प्री ट्रैवल, जब वो थोड़ा सा लिटिल जो टाइम होता है वन स्टेप से सेकेंड स्टेप के बीच में जो थोड़ा सा लिटिल टाइम होता है, तो ड्यूरिंग दिस प्री ट्रैवल टाइम जिसे बोलते हैं, द पंच रोटेट्स एंड दिस पॉइंट द पंच में मेक अ न्यू इम्प्रेशन ऑन द बॉटम, एक नया इंप्रेशन बॉटम में छोड़ जाता है ऑफ द टैबलेट के, रिजल्टिंग इन डबल इंप्रेशन, जिसे डबल इंप्रेशन करते हैं। मतलब एक ऑलरेडी इंप्रेशन बन चुका है उसी के ऊपर डबल इंप्रेशन हो सकता है। तो ये इम्प्रॉपर हैंडलिंग ऑफ अ लोअर एंड अपर पंच की हैंडलिंग की वजह से होता है, जिसे डबल इंप्रेशन कहते हैं। मतलब कि इसकी कॉसेस क्या होते हैं, प्री रोटेटिंग ऑफ आइदर अपर पंच एंड लोअर पंच ड्यूरिंग इजेक्शन ऑफ टैबलेट, जब टैबलेट उससे निकल रही है तो उसकी प्रॉपर हैंडलिंग नहीं है, उसके बीच में जो बिटवीन टाइम है या शॉर्ट टाइम है उसमें उसका प्रॉपर हैंडलिंग नहीं होने की वजह से दो बार वो उस पर पंच हो जा रहा है। तो यूज कीइंग इन टूलिंग, जब टूलिंग में हम क्या कीइंग कर सकते हैं उसका, तो जो शॉर्ट टाइम ट्रेवल है, शॉर्ट टाइम में जो इधर उधर मूवमेंट उसका हो रहा है वो नहीं हो पाएगा। insert a key along sides of the punch so that it fits the punch and prevent punch rotation, वो उसमें जाके फिट हो जाएगा जिससे कि हमें प्रिवेंट होगा पंच रोटेशन से, जो इधर उधर पंच हो रहा है थोड़े से रिलेटेड टाइम में, शॉर्ट टाइम में। न्यू ईयर ब्रश हैव एंटी टर्निंग डिवाइसेस, मतलब जो नई आई है उसमें एंटी टर्निंग डिवाइसेस आई हैं विच प्रिवेंट पंच रोटेशन, जो प्रिवेंट करती हैं पंच के रोटेशन से। Thank you very much. Have a nice day.